Hello everyone, this is Yuvraj Gurjar and today we'll see Euler's equation in cylindrical and spherical coordinate system. ओके तो इसकी जैसे हमने कार्टेशियन में डिस्कस किया उसी टाइप इसकी इक्वेशंस है. ओके सो लेट अस राइट दोज इक्वेशन देन we'll solve these two questions. Okay so let us first take cylindrical coordinate system. Euler's equation of motion or equations of motion in fact in cylindrical coordinate system. अच्छा, we know that Euler's equation is nothing but d over dt q vector equals to f vector minus gradient of p 1 by rho. This is the velocity vector of the fluid flow. This is the external force that is being applied on the fluid flow. F is external force per unit mass. Okay, this is per unit mass. इसको याद रखना है, ठीक है. And this is the gradient, the pressure which is being applied on the fluid. Okay, and rho is density of the fluid. ये we have discussed, ठीक है. So cylindrical में क्या हो जाएगा कि we know that cylindrical system क्या होता है. This is x, let us say this is y and this is z axis, ठीक है. Then if we take a point here r, theta, z, then that means कि यहाँ से this line makes angle theta here and this distance is this is r. Okay, and the distance of xy plane from this point is z, ठीक है. So ये होता है, तो इसमें क्या होता है, x is nothing but r cos theta, y is r sin theta and z is z. That is this is nothing but cylindrical coordinate system, ठीक है. तो इसमें देखो, first of all we know कि d over dt is this operator is nothing but del over del t plus q vector dot nebula या gradient, ठीक है. q vector dot del, ठीक है. This is this operator. तो अगर इसको cylindrical form में लिखेंगे तो this is equivalent of saying del over del t plus, देखो अगर कोई भी वेलोसिटी है उसको इसमें लिखें, वी कैन राइट क्यू आर आर के, ठीक है. मीन्स इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, प्लस क्यू थीटा थीटा के, मीन्स थीटा मीन्स दिस परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, इंक्रीजिंग थीटा. सो दिस इज द थीटा कैप डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज थीटा कैप, दिस इज आर कैप, ठीक है, एंड दिस इज जेड कैप प्लस क्यू जेड जेड कैप. ऐसे लिख सकते हैं किसी भी वेलोसिटी या किसी भी वेक्टर है, लेट अस से एफ वेक्टर है, तो इसके कंपोनेंट अगर हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, देन दैट इज नथिंग बट एफ आर आर के प्लस एफ थीटा थीटा के प्लस एफ जेड जेड के, ठीक है. हमने वही किया है यहाँ पे, ठीक है. तो इसको अगर अब इस ऑपरेटर को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज देखो, we know that this operator in Cartesian form क्या हो जाएगा, d over dt del over del t plus q vector is in Cartesian q vector is written as ui plus vj plus wk, ठीक है. तो इसको जब हम डॉट करते हैं, this we have discussed actually, तो इसको we can write del u del x, ठीक है, u del over del x plus v del over del y plus w del over del z. ये d over dt is equivalent of this in Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system, ठीक है. और cylindrical coordinate system में क्या होगा, d over dt is equivalent of del over del t, u in the direction of r and with this partial derivative is to r, not u actually, q, we have taken this q, so this q r and partial derivative whatever function जो भी यहाँ पे whatever function will be here, उसका partial derivative with respect to r, q theta del over r del theta, क्योंकि जो देखो जो अपना
सिलेंड्रिकल सिस्टम है, इसमें व्हाट वी हैव डी आर, आर डी थीटा एंड डी जेड, दीज आर द स्मॉल आर्क लेंथ्स। सो यहाँ पे डी आर, दिस विल बी आर डी थीटा, ऐसे क्यू जेड डेल ओवर डेल जेड। आई होप समझ में आता है, ठीक है। सो दिस इज इन सिलेंड्रिकल सिस्टम, दिस डी ओवर डी टी, एंड सिमिलरली दिस इज सिलेंड्रिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डी ओवर डी टी इज, इसमें आर्क लेंथ क्या होती है, डी आर, आर डी थीटा, आर साइन थीटा डी फाई, दिस वी हैव डिस्कस्ड प्लेंटी ऑफ टाइम्स, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल टी, तो चलो वैसे ही रहना है, क्यू आर डेल ओवर डेल आर प्लस क्यू थीटा, इसकी डायरेक्शन में ये है आर्क लेंथ, सो डेल ओवर आर डेल थीटा, आर डेल थीटा, ठीक है, आर डेल थीटा प्लस क्यू फाई डेल ओवर, इसकी डायरेक्शन में क्या, आर साइन थीटा डेल फाई। सो दिस द डी ओवर डी टी इन दिस इज इन स्पेरिकल, दिस इज सिलेंड्रिकल इन द कार्टेशियन। इसको भी आल्सो से डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड फ्लो, ठीक है। बस अब इसका यूज करना है हमें। अब देखो सिलेंड्रिकल सिस्टम में ये इक्वेशन जो आयलर्स इक्वेशन ये है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सिलेंड्रिकल सिस्टम इट इज रिटन एज फर्स्ट डी क्यू वेक्टर ओवर डी टी इक्वल्स टू एफ वेक्टर माइनस 1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ पी, ये है। तो अगर डी क्यू वेक्टर ओवर डी टी की बात करें, सो दिस विल बिकम दिस विल बी डी क्यू आर डी टी माइनस क्यू थीटा स्क्वायर बाय आर, दिस विल बी द रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। मीन्स ये जब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे क्यू वेक्टर अप्लाई करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू दिस कोमा, दिस इज रेडियल डायरेक्शन, राइट, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन। थीटा डायरेक्शन में क्या होगा, डी क्यू थीटा ओवर डी टी प्लस क्यू आर क्यू थीटा बाय आर, ठीक है। एंड जेड डायरेक्शन में क्या होगा, सिंपल डी क्यू जेड बाई डी टी। ये तो हो गया डी क्यू वेक्टर ओवर डी टी, और एफ वेक्टर के कंपोनेंट तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बी एफ आर कोमा एफ थीटा कोमा एफ जेड, और वी कैन राइट एफ आर आई कैप प्लस एफ थीटा थीटा कैप प्लस एफ जेड जेड कैप, और इन कोऑर्डिनेट फॉर्म में से भी लिख सकते हैं। और ग्रेडियंट ऑफ पी क्या हो जाएगा, 1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ पी इज 1 बाय रो ग्रेडियंट ऑफ पी क्या हो जाएगा, दिस इज डेल पी ओवर डेल आर, 1 डेल पी ओवर आर्क लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा डेल पी ओवर आर्क लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये हो गया, ठीक है। बस अब इसको इस इक्वेशन में रख देते हैं, let us call this equation 1, this 2, this 3 and this 4. So from above equations what we can say, अगर इसकी सबकी वैल्यू पुट करके if we equate the x basically r component, theta component, z component, what we will get, dqr over dt minus q theta square by r is equal to fr minus 1 by rho del p over del r. So this is the radial direction. This is in radial direction. ये आयलर्स इक्वेशन की रेडियल डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया। इनफैक्ट हमारे पास जो 90% केसेज हो गए उसमें यही यूज होना है, इसी से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे ज्यादातर केसेस में, ठीक है। और अब थीटा डायरेक्शन में अगर देखेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू थीटा और डी टी, ठीक है, प्लस क्यू आर क्यू थीटा बाई आर, थीटा कंपोनेंट इक्वेट कर दे रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इक्वेटिंग द थीटा कंपोनेंट ऑफ दिस theta component here, this is theta component here, and this is theta component here. Okay, so let us equate them and we are done, ठीक है। So this is f theta minus 1 by rho del p over r del theta. So this is radial direction में होगी, this is in theta direction, and z direction will be as simple as Cartesian because z direction तो वही रहती है, ठीक है। So इसको what we can write, 2 q z
dt equals to एफ जेड माइनस वन बाय रो डेल पी ओवर डेल जेड, ठीक है. सो दिस इज जेड डायरेक्शन. सो दीज आर द Euler's equations of motion in cylindrical polar coordinate system, ठीक है. अच्छा, समटाइम्स व्हाट विल हैपन दैट वी विल बी गिवन क्यू आर एंड क्यू थीटा, मीन्स हमें वेलोसिटी के रेडियल एंड थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट गिवन होंगे, बट उसमें ये नहीं बोला होगा कि दीज आर द कंपोनेंट इन सिलेंड्रिकल सिस्टम. द क्वेश्चन विल सिंपली से दैट अ फ्लूइड इज फ्लोइंग, टू डिमेंशनल फ्लूइड फ्लो इज बीइंग स्टडीड, ठीक है, वेयर इन क्यू आर एंड क्यू थीटा आर गिवन. सो देन वी हैव टू रिसोर्ट टू सिलेंड्रिकल मेथड, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, क्यू जेड जीरो हो जाएगा, ठीक है. दैट विल नॉट बी स्पेरिकल सिस्टम, माइंड इट. ओके, जब भी टू डिमेंशन की बात की जाए एंड क्यू आर एंड क्यू थीटा कंपोनेंट दिए गिवन है एंड इट इज सिंपली सेड कि टू डिमेंशन फ्लूइड इज फ्लोइंग विद रेडियल एंड थीटा कंपोनेंट so and so, then we have to resort to the cylindrical coordinate system. जब भी क्यू आर क्यू थीटा स्फेरिकल के लिए पूछा जाएगा तो उसमें इस क्वेश्चन में स्पेशली दिया होगा कि these क्यू आर क्यू थीटा आर इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. सो जब भी टू डिमेंशन फ्लूइड फ्लो की बात होगी, रेडियल एंड क्यू थीटा आर गिवन, देन वी विल पुट द क्यू जेड जीरो, या जेड कंपोनेंट जो भी है उसका जीरो हो जाएगा. या ये सब मीन्स कि पी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मीन्स पी विल बी ओनली फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा. तो तब हम सिलेंड्रिकल सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है. अब आई होप ये समझ में आता है, ठीक है. इसी टाइप से ये, चलो पहले इस पे, ओके, सो लेट अस टेक स्फेरिकल आल्सो. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है. तो उसमें इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सिंपल कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा उसमें. डी और डी टी हमने लिखा, तो इसमें अगर व्हेन वी विल कंपेयर द एक्स आर थीटा एंड फाई कंपोनेंट, then we'll get this dqr d theta minus q theta स्क्वायर, इसमें सिलेंड्रिकल में था, इसमें q फाई का स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय r इक्वल्स टू एफ आर माइनस वन बाय रो डेल पी ओवर डेल आर. दिस इज द इक्वेशन 1, ठीक है. इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस इज इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है. और थीटा कंपोनेंट, थीटा डायरेक्शन में क्या होगी, टी. अच्छा, इसमें देखो, इसमें थीटा क्या है, हमने जो थीटा एज्यूम किया, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. दिस एंगल इज टेकन एज थीटा, ठीक है. और इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन पे, ये प्रोजेक्शन है इसका, लेट अस से दिस इज आर. तो ये जो लेंथ है ये क्या है, आर साइन थीटा. सो दिस इज आर साइन थीटा बिकॉज उसी का प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे, एंड दिस प्रोजेक्शन मेक एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस, ठीक है. So this is the spherical coordinate system. So dq theta by dt plus qr q theta by r minus q phi square cot theta divided by r equals to f theta minus 1 by rho del p over r del theta. This is in theta direction, ठीक है. आई होप समझ में आता है. अच्छा, इसमें जब भी साइन या कोस या कोट, जैसे यहाँ कोट आ रहा है, इस टाइप के टर्म आएंगे वो हमेशा थीटा में ही आने, ठीक है. ओके, अब देखो, अब फाई वाला डायरेक्शन में लिखेंगे तो डी क्यू फाई और डी टी प्लस क्यू आर क्यू थीटा कोट फाई डिवाइड बाय आर, नॉट फाई सॉरी, दिस इज थीटा. जब भी ये मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थीटा के ही आएंगे, ठीक है. सो दिस इज एफ फाई माइनस वन बाय रो डेल पी ओवर फाई की डायरेक्शन में आर्क लेंथ इज आर साइन थीटा डेल फाई. सो दिस इज इन फाई डायरेक्शन. सो these three are the Euler's equation of motion in Euler's equation of motion in spherical coordinate system, ठीक है. These equations are also known as momentum equations, ठीक है. Momentum equations also known as momentum equations means जितनी भी equations हमने equations of motion देखी Euler's,
दे आर आल्सो टर्म्ड एज मोमेंटम इक्वेशंस। आई होप ये समझ में आता है। सो लेट अस डू क्वेश्चंस ऑन दीज टू कॉन्सेप्ट्स। ओके okay, so these are the questions. The first question is this. Okay. Okay. Q vector is given. Q vector, this is the radial direction component, this is a theta direction component for a inviscid incompressible two dimensional fluid flow। ठीक है, अब टू डिमेंशनल फ्लूइड फ्लो है और आर एंड थीटा गिवन है, इसका मतलब दिस इज सिलेंड्रिकल सिस्टम। ठीक है, इनविसिड। ओके, फाइंड प्रेशर लिंक टू दिस वेलोसिटी फील्ड। ओके, बी एंड ई आर कांस्टेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है। ओके, सो व्हाट वी विल डू, solution equations of motion for inviscid flow in cylindrical coordinate system। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है कि वाई वी आर रिसोर्टिंग टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे टू डिमेंशनल फ्लो है। ठीक है, सो इसमें क्यू जेड तो जीरो हो गया, क्यू जेड जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डी क्यू जेड डी टी माइनस इक्वल्स टू एफ जेड माइनस 1/रो डेल पी और डेल जेड। ठीक है, अब क्यू जेड जीरो मीन्स दिस इज जीरो, और इसमें गिवन है कि एक्सटर्नल जो फोर्सेज आर वेरी स्मॉल मीन्स एफ इज एज गुड एज जीरो। ठीक है, सो ये पार्ट हो गया जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एंड दिस इज 1 माइनस रो डेल पी और डेल जेड, दिस इज ऑल्सो जीरो। इसका मतलब डेल पी ओवर डेल जेड इज जीरो। ओके, सो डेल पी ओवर डेल जेड इज जीरो, दैट मीन्स पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड, मीन्स पी इज ओनली डिपेंडेंट ऑन आर एंड थीटा। p equals to some constant which may be function of r and theta because this derivative is zero only with respect to z। okay, so ये हमारे लिए एक इक्वेशन आ गई। तो इससे क्या हो गया कि हम सिर्फ r and theta पे ही हमारा जो p है that will be function of r and theta। now रेडियल डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ मोशन और मोमेंटम इक्वेशंस, ये क्या होगी, ओके, डी क्यू आर डी टी माइनस प्लस क्यू आर क्यू थीटा, no in radial direction we are writing, right? So this is minus q theta square by r equals to f r minus 1 by rho del p over del r। this is the equation of motion in radial direction। बस अब वैल्यू पुट कर देनी है। what is q r, हमारे पास क्यू आर इज गिवन, क्यू आर इज माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कोस थीटा। ओके, सो क्यू आर इज माइनस बी 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर कोस थीटा, है ना, एंड क्यू थीटा इज गिवन एज, व्हाट इज क्यू थीटा, क्यू थीटा इज बी 1 प्लस, ओके, बी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, सो बस वैल्यूज पुट करनी है। सो क्यू आर, ओके, इसको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा हमें। अच्छा देखो, इसमें टी क्यू आर है, इसमें देयर इज नो टी, इवन क्यू थीटा डजंट हैव एनी टी। इसका मतलब डेल क्यू, इनफैक्ट डेल क्यू वेक्टर और डेल टी इज जीरो। ठीक है, इसका मतलब डेल क्यू आर और डेल टी इज जीरो, del q theta del t is equals to also zero because there is no theta involved in the expression of qr and q theta। बस अब इसको क्या कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या था, ये डेल ओवर डेल टी प्लस क्यू आर डेल ओवर डेल आर प्लस क्यू थीटा डेल ओवर आर डेल थीटा। जेड तो इसमें है ही नहीं वैसे, दिस पार्ट इज आल्सो गॉन, सो दिस क्यू आर माइनस क्यू थीटा स्क्वायर बाय आर
and FR is also 0 because there is no external forces, and if they are very small, so they can be neglected. ठीक है. So बस अब देखो QR वैल्यू पुट करते जाते हैं बस. 1 minus a square by r square cos theta. This we have to differentiate with respect to r. इसका मतलब क्या होगा? minus b with respect to r, that is 2a square by r cube, right? -2. ठीक है. cos theta ऐसे रहेगा. ओके. प्लस q theta is b times 1 plus a square by r square sin theta. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 1 by r. ठीक है. एंड दिस डेल क्यू आर और डेल थीटा, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करना है. सो माइनस बी ऐसे कैसा रहेगा? 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कोस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा. माइनस माइनस हो गया प्लस. ठीक है. आई होप समझ में आता है. अब देखो यहां तक हो गया. माइनस क्यू थीटा स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा divided by r, right? Minus q theta square by r. This has to be equals to 1 minus 1 by rho del p over del r. Okay, let us call this is question 1. और okay, अब बस सिंप्लीफाई कर देना है. अब देखो इसमें साइन कोस स्क्वायर थीटा के टर्म्स ये है माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस चलो प्लस हो गया प्लस बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर क्यूब 1 माइनस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, राइट? बी स्क्वायर ए स्क्वायर ट्वाइस आर क्यूब. यस. अब साइन स्क्वायर थीटा के दो टर्म है तो क्लब हो जाएंगे. ये देखो क्या है? बी स्क्वायर बाय आर क्यूब, नहीं, बी स्क्वायर बाय आर. ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके. और इसी में माइनस बी स्क्वायर बाय आर 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रो डेल पी और डेल आर. ओके. अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है. अगर इस वाले पोर्शन को देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है. ठीक है. सो बी स्क्वायर तो है ही, चलो कॉमन. बी स्क्वायर बाय आर इज आल्सो कॉमन. सो दिस पार्ट इज गॉन, दिस पार्ट इज गॉन, दिस आल्सो गॉन, वन ऑफ दिस आल्सो गॉन, साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो इसमें से क्या हो गया? 1 प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस दिस, सो दिस इज माइनस 2 ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है. इक्वल्स टू okay equals to 1 by rho del p over del r. So basically more of calculations now. ये है हमारे पास 2b स्क्वायर a स्क्वायर r क्यूब 1 माइनस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा. ओके. ठीक है. अब देखो, अब व्हाट वी कैन डू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2b स्क्वायर a स्क्वायर 1 बाई आर क्यूब को अंदर ले जाते हैं ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर की पावर 5 कोस स्क्वायर थीटा. ठीक है. सिमिलरली इसको व्हाट वी कैन से 2b स्क्वायर ए स्क्वायर बाई आर क्यूब को अंदर ले जाते हैं 1 बाई आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर बाई आर की पावर 5. दिस इज माइनस 1 बाई रो डेल पी ओवर डेल आर. ओके. बस अब इसको सोल्व कर देना है. इसको क्या करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू आर, अगर वी इंटीग्रेट दिस, राइट, बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर क्यूब हैज बीन टेकन इनसाइड. ठीक है. अब देखो विद रिस्पेक्ट टू, अगर इसको आर वी इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर,
ठीक है, तो ये क्या आएगा 2b² a², 1/r³ का क्या हो जाएगा -3 + 1, दैट इज 1/2r², ठीक है, ठीक है, -a² 4r⁴ प्लस, राइट, ये हो गया इंटू cos² थीटा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू r कर रहे हैं, सो cos² थीटा विल बी कांस्टेंट, 2b² a² डिवाइड बाई दिस इज अगेन -2r³ -a² 4r⁴ -1/ρ del p over del r, ठीक है, और रो इज कांस्टेंट इन दिस बिकॉज द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। अब इसको बस इसको व्हाट वी कैन अच्छा नो दिस इज नॉट डेल पी और डेल आर बिकॉज दिस इज p by r बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू r प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और वी कैन से दैट p by रो इज ये माइनस को एडजस्ट कर दिया जाए, सो दिस इज 2b² a², अच्छा यहाँ से 2 अगर बाहर लिया जाए तो अंदर क्या आएगा, अच्छा ये तो माइनस ही हो जाएगा बिकॉज माइनस यहाँ से गया, 1/r³ प्लस a² डिवाइड बाई 2r⁴, ठीक है, ओके, प्लस b² a² माइनस, सो 1/r² माइनस a² 2r⁴, ठीक है, दिस इज स्क्वायर एक्चुअली, दिस इज स्क्वायर, ओके, सो प्लस सम कांस्टेंट ऐसा बोल सकते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया p by रो, ठीक है, और इसको थोड़ा कमेंट किया, अच्छा दिस इज cos² थीटा टर्म इज देयर, दिस देयर विल बी सम साइन, राइट, या दिस इज sin² थीटा, दिस इज cos² थीटा, राइट, अब देखो दिस इज sin² थीटा, दिस इज cos² थीटा, ठीक है, बिकॉज ये हमने ऐसे कर लिया था, सो p by रो, अब देखो इसमें व्हाट वी कैन डू, अब देखो अगर इसमें b² a² by r² बाहर ले लिया जाए तो यहाँ क्या है माइनस sin² थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस cos² थीटा, ठीक है, प्लस अगर फिर b² by a² डिवाइड बाई 2r⁴ कॉमन ले लिया जाए, b² a² फिर अंदर भी है, सो लेट अस कॉल दिस a⁴, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से माइनस cos² थीटा बाहर आएगा, यहाँ से माइनस sin² थीटा बाहर आएगा, प्लस c, और we can say that p by rho is equals to b² by a² divided by r², this is cos² theta minus sin² theta, again we written as cos2 theta, this is -1, cos² theta or sin² theta is 1, a⁴ divided by 2⁴ plus c, ये जो कांस्टेंट होगा दिस विल बी फंक्शन ऑफ थीटा, राइट, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, सो ये हमारे पास p by rho आ गया। अब क्या है, सिमिलरली इन थीटा डायरेक्शन, थीटा कैप डायरेक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन ये क्या है, dq थीटा ओवर dt प्लस q थीटा बाय r इक्वल्स टू एक्शन फोर्स तो 0 है, -1/ρ डेल p ओवर r डेल थीटा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें if we put values of all these, है ना, if we put values of all these and calculate del p और del theta या 1/ρ del p और del theta, यस, ठीक है, और यहां से भी अगर सेम देखो ये जो एक्सप्रेशन है इससे भी इफ वी कैलकुलेट, इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर इंटीग्रेट किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए रो डेल थीटा, ठीक है, तो ये देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो क्या आएगा, b² a² डिवाइड बाई r², दिस इज -2 sin 2 थीटा, और ये 0 हो जाएगा, प्लस df और d थीटा बिकॉज f इज फंक्शन ऑफ थीटा ओनली, ठीक है, और इसको अगर आप इफ वी डिवाइड दिस थ्रू आउट r, तो यहाँ पे r³ हो जाएगा, यहाँ पे r हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इसको
इसमें ये जो है इसकी वैल्यू तो हमें कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। अगर वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से मान लो कुछ आ गया फंक्शन ऑफ जी आर एन थीटा, एक ये कुछ आ गया। इफ इसको भी इक्वेट जी आर थीटा, तो ये जो टर्म है एंड दिस टर्म दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है, जैसा कि जनरली एग्जैक्ट इक्वेशन में होता है। सो ये हमारे पास आएगा डेल एफ और डेल थीटा इज जीरो, इसका मतलब एफ इज कांस्टेंट, एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। सो वैसे भी एफ वाज ओनली, वी एज्यूम दैट एफ इज फंक्शन ऑफ ओनली थीटा, but it is not even function of theta, so f is constant with respect to r and theta both। तो यहाँ से what we can say that जो p over rho हमारे पास आएगा, ठीक है। ये आई एम लिविंग एज एक्सरसाइज, ये कर सकते हो आप, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत से किए भी हैं पहले भी, ठीक है। ये जो टर्म निकलेगा और इसको डिफरेंशिएट करके जो जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन, हाँ जो ऊपर एक्सप्रेशन आया था p और रो का, उसको डिफरेंशिएट करके सेम टर्म हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो वो ये आ रहा है, और ये जो आइलर्स इक्वेशन से 1 बाय रो डेल पी और डेल थीटा आएगा, दैट विल आल्सो विद दिस ओनली। सो यहाँ से डेल एफ और डेल थीटा जाएगा जीरो। सो हमारे पास पी बाय रो क्या आ गया, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका मकसद ओनली एफ थीटा कैलकुलेट करना था, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कोस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर ए की पावर 4 टू आर की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट। सो दिस इज द प्रेशर एसोसिएटेड विद दिस मोशन, P is equals to rho times this, so this is our answer। आई होप समझ में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को भी किया जा सकता है। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज q vector is given in r and theta direction only but in spherical coordinate system, is it possible solution for momentum, possible solution of momentum equations? Momentum equation means equation of motion of Euler's equation of motion basically, ठीक है। तो बेसिकली हमें यही देखना है कि if this is basically if this is solution of momentum equation means there will exist a p such that it will satisfy the momentum equation for these qr and q theta, ठीक है। so basically जैसा ऊपर वाला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज की गई है एंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो सेम वे होगा बस, ठीक है। सो दीज आर मोर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस, ठीक है, वंस वी नो द इक्वेशन। सो देखो इसमें रेडियल डायरेक्शन में क्या है, रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, डी क्यू आर और डी टी, ठीक है, माइनस क्यू थीटा स्क्वायर प्लस क्यू फाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर, दैट इज, अच्छा इसमें भी बॉडी फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तो इसको, हाँ इसमें द स्टेटमेंट इज गिवन दैट बॉडी फोर्सेज आर नेग्लिजिबल, इसका मतलब बॉडी फोर्सेज को जीरो करेंगे, माइनस वन बाय रो डेल पी और डेल आर, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इसमें अगर इसकी वैल्यू ये क्या है, दिस इज नथिंग, अच्छा इसमें देयर इज नो टी इनवॉल्वड इन क्यू आर इन क्यू थीटा, सो डेल और डेल टी क्यू आर ये पार्ट तो हो गया जीरो, सो जीरो प्लस क्यू आर डेल ओवर डेल आर प्लस क्यू थीटा डेल ओवर आर डेल थीटा प्लस, देखो फाइव कंपोनेंट इसमें है नहीं तो इसमें क्यू फाइव जीरो है, क्यू फाइव जीरो तो ये लिखने की जरूरत है नहीं हमें, क्यू फाइव वाला पार्ट इंटू क्यू आर माइनस, अच्छा क्यू फाइव यहाँ पे जीरो हो गया, सो क्यू थीटा स्क्वायर बाय आर ही रह गया, तो माइनस वन बाय रो डेल पी ओवर डेल आर। आई होप ये समझ में आता है। नाउ ये हो गया, अब देखो ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी नीड क्यू आर and q theta, so there are qr and q theta, b1 minus qr की वैल्यू क्या है, b1 minus a क्यूब डिवाइड बाई r क्यूब cos थीटा, ठीक है। और इस qr को रिस्पेक्ट टू r अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो b टाइम्स a क्यूब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सो माइनस 3 डिवाइड बाई r की पावर 4 cos थीटा, ऐसे कैसे रख देते हैं, ठीक है। प्लस क्यू थीटा इज इसे माइनस क्यू थीटा इज माइनस बी
1 प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है, साइन थीटा इन डिवाइड बाई आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करना है। ये क्यू थीटा लिखा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी हैव टू डिफरेंशिएट क्यू आर, सो क्यू आर को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, बी 1 माइनस ए क्यूब बाई आर क्यूब, कोस थीटा का हो गया साइन थीटा, माइनस, तो ये हो गया प्लस, ठीक है। इसके बाद माइनस क्यू थीटा स्क्वायर, माइनस क्यू थीटा स्क्वायर, ओके, सो माइनस क्यू थीटा तो यही है, बी स्क्वायर 1 प्लस ए क्यूब बाई आर क्यूब का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट, दिस इज द क्यू थीटा, क्यू थीटा, नो नो, दिस इज 1 प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई 2 आर क्यूब, 2 आर क्यूब है ये, ठीक है, सो दिस इज 2 आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 minus a cube divided by r cube sin theta. Okay, so this was v times. Okay, so I hope यहाँ तक समझ में आता है. So this is q theta square divided by r तो है ही, ठीक है. This should be equals to minus 1 by rho del p over del r. अब सेम प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है. अब देखो इसमें देखो साइन स्क्वायर की दो टर्म है, कोस स्क्वायर थीटा वाले को अलग अलग से लिया जाए, 3 बी स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाय आर की पावर 4, ठीक है, 1 माइनस ए क्यूब आर क्यूब कोस स्क्वायर थीटा, राइट. दिस पार्ट इज गॉन, दिस पार्ट इज आल्सो गॉन, 9, ओके, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को ले लिया जाए कॉमन, बी स्क्वायर को भी ले लिया जाए कॉमन, दिस पार्ट इज कॉमन, ठीक है. और देखो यहाँ पे ठीक है, तो हमारे पास क्या रह गया अंदर, 1 प्लस ए क्यूब 1 प्लस 2 आर क्यूब, a cube divided by 2 r cube, okay, into 1 minus a cube by r cube divided by r, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर आर गॉन. अच्छा, एक और यहाँ पे भी एक और है, तो इसको भी कैन टेक आउट, माइनस 1 प्लस 2 ए क्यूब 2 आर क्यूब, ए क्यूब बाई 2 आर क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, बस. सो दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 बाई रो डेल पी ओवर डेल आर. बस इसको सोल्व करना है. सो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, बी स्क्वायर ए क्यूब 1 बाई आर की पावर 4 माइनस ए क्यूब आर की पावर 7, बिकॉज वहां पे 4 है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो इसमें क्या है कि दिस पार्ट इज कॉमन एनीवे, सो 1 प्लस ए क्यूब डिवाइड बाई 2 आर क्यूब तो हो गया कॉमन, और उसमें से ये माइनस करना है हमें, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज बेसिकली 3 माइनस 3 ए क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब 2 आर क्यूब, राइट. हाँ, हाफ एंड 1 इज 3 बाई 2 ए क्यूब आर क्यूब माइनस है, ठीक है. सो ओके, इसमें इसको भी क्या कर सकते हैं, अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज एंड एक आर ये भी है, आर की पावर 4 एंड दिस इज 7, ठीक है. सो दिस इज माइनस 1 बाई रो डेल पी ओवर डेल आर. अब सेम चीज है, वैसे इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये क्या आएगा, 3 बी स्क्वायर ए स्क्वायर
ठीक है। 1/r4 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/3 r क्यूब, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a क्यूब 6r⁶ cos स्क्वायर थीटा प्लस 3b² a क्यूब माइनस है, चलो देखते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अंदर, दिस विल बी माइनस, तो इस माइनस को एडजस्ट कर दिया जाए, 1/3 r⁵, और यहाँ पे भी माइनस आएगा, सो ये जाके यहाँ से प्लस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माइनस, सो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट, बस। सो अगेन this can be simplified, I guess. अच्छा, this is there is this sin square theta. Of what we can do, we can take 3b² a² by 3r³ कॉमन, तो ये आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा by 2. Similarly, we can take this 3b² a² divided by r⁶. If we take this common, this is cos square theta plus sin square theta by 2. This is minus p by rho plus some constant, ठीक है। So from this we have p by rho as 3 से 3 कैंसिल हो गया, b² by a² r³ माइनस एडजस्ट किया जाए, माइनस sin स्क्वायर थीटा by 2 माइनस p² a⁵ r⁶ ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा by 2 plus some constant. This is the function p as a function of r and theta. Similarly, what we will do, we'll write in radial theta direction, ठीक है, और वहां से we'll get the del p और del theta, and if we'll compare that, obviously this is function of theta only, then this theta, basically this part will come out to be 0, so this part will come out to be this part will come out to be equal to this, means जो ये expression है this plus there will be del f over del theta terms, so this and this will cancel out, so del f over del theta will be 0, so f will be constant. So यहाँ से we can say that p is nothing but this b² a² by r³. इसको किसी cos या sin के एक टर्म में भी ले सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। sin स्क्वायर थीटा by 2 माइनस b² a⁵ divided by 2 r⁶ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin square theta by 2 plus c. So this is our pressure. This is a pressure which is obviously function of r and theta only because phi component is 0. So इसमें क्या आएगा, del p और del phi is 0. So यहाँ से we'll say that p is a function of r and theta only. Okay. अच्छा, इसमें ये वाला part भी करना है while doing an exam, ठीक है, but that will come out to be, that will give this condition, ठीक। So I समझ आता है. So for today this is all.